साथ मेरे कुलीग जहाँ स्टेज पे बैठे हैं। सबसे पहले तो अभय सिन्हा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के। निशांत उज्ज्वल जी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के। संग्राम शेरके जी ट्रेजरर हैं फिल्म एफएफआई के। अशोक पंडित हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम एफएफआई एंड आई एम धर्मेंद्र मेहरा ऑनरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ एफएफआई। तो मैं अब अपने प्रेसिडेंट को माइक देता हूँ और वो आपसे ओपनिंग की बात करेंगे। ओवर टू अभय जी। सभी को मेरा प्रणाम, वेलकम, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। आज ऑस्कर की शुरुआत हो चुका है और आज से पिक्चरें आना शुरू हो गया है ऑस्कर की, और फिल्म भी हमारे पास 2 फिल्में आ चुका है जिसका भी नाम हम आप लोगों को कुछ दिनों बता देंगे। और 7 सितंबर ये फिल्म हम लोग का लेने का सबमिशन का लास्ट डेट है। 7 सितंबर तक हम लोग फिल्म ले सकते हैं। 8 तारीख से हमारी स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी, 8 सितंबर से, और 18 सितंबर तक ये स्क्रीनिंग हम लोग देखेंगे। इसका जूरी इसको देखेगा और 19 तारीख को फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करेंगे कि कौन सी फिल्म हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और बाकी की चीज अशोक जी, धर्म जी बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू अभय जी। तो द ओपनिंग हैज टेकन प्लेस। प्लीज मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितनी जास्ती पिक्चरें आए कंपटीशन और अच्छा होगा, और इस साल हम चाहते हैं कि ऑस्कर हम लेके आए। जितनी जास्ती पिक्चरें आएंगी उतना ही अच्छा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। मैं अभी अशोक पंडित जी को दे रहा हूँ माइक टू टेल यू समथिंग अबाउट एफएफआई। अशोक। Namaskar, good afternoon. Thank you for coming for this press conference of FFI. आप लोग एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए दोहराने का मतलब नहीं है। But even then, let me tell you about FFI. FFI is known as Film Federation of India. It is an apex body of all the producer bodies all over the country. So you have people from organizations from South, from West, from Bengal, from the North, from East, from West, everywhere. So all the film bodies which are based and doing very well in the entire country are the members of Film Federation of India, FFI. And this was established in 1957. 1957 में ये established हुआ था। उसमें पहली फिल्म जो ऑस्कर में गई थी थी मदर इंडिया, और उसके बाद 2025 में continuously every year FFI was very active, and last year we had sent homework. So it's a very systematic, it's a very pure way of organizing the entire route as to how the film normally goes. Very transparent way of sending the film which represents India. मतभेद तो होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बट जूरी जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जूरी होती है। चॉइस किया जाता है। Most of the jury members are national award winners. They are serious filmmakers, commercial filmmakers. तो जो कॉम्बिनेशन बनता है जूरी का वो बहुत ही ऐसे लोगों का बनता है जिन्होंने who basically are achievers in the industry from all over the country. It's not only Hindi cinema, it's not only cinema which is based in Mumbai or Maharashtra. It's also South, Bengal, everywhere. तो जितने भी हमारे जो टॉप क्रिएटिव लोग हैं इंडस्ट्री के, belonging to all crafts. It's not only a director or it's not only a producer. A cinematographer हो सकता है, editor हो सकता है, choreographer हो सकता है, art director हो सकता है, कोई भी क्राफ्ट का बंदा जिसने नेशनल अवार्ड जीता है और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, वो इस जूरी का हिस्सा बनता है. So it's very obvious when such people come in the jury, things are on a serious level. It's on a proper level, and the film which goes is a film which deserves to go represent our country, a great country, to the Oscars. The entries of submission of films will be open on 4th of August. Prestige आपको दे दी गई, लेकिन तो भी मैं पढ़ता हूँ. The entries for submission of films will be open from 4th of August to 2026 till 7th September 2026 at 6 p.m. till 6 p.m. The FFI will nominate a chairman of the jury along with senior qualified people, which I said from the creative field, will put the
who will be part of the jury. The final entry will be decided, as mentioned by Abhay Sinha, the president, by a vote after all the screenings are done and will be announced on 19th of September 2026. So India is marching towards another amazing year in the movies and entertainment space, and we are proud that Indian movies are making a mark at various international platforms, including the prestigious Oscars. The FFI will provide all help to the producers to have a smooth, democratic, and transparent nomination process. So, in presence of yours, in presence of the media, we want to communicate to the entire industry all over the country that please send your films with proper paperwork and documentation, and try your luck because you have really worked very hard. You have done brilliant job as far as films are concerned, and think of an opportunity to win this prestigious, portion of the film which you have made with so much of hard work. तो बेसिकली ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा अभय जी ने कहा और धर्म जी ने कहा कि ये अनाउंसमेंट है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ selecting a film for the Oscars representing our great country has begun from today. So that is what we wanted to share with you. And anything else, I think everything is done. Film submission जो है, film release in theatre. So there are conditions which जो conditions हैं कुछ उस basis पे ही आप film submit कर सकते हैं. वो पूरे सब सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको प्रेस रिलीज इशू किया गया है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं. बट बेसिकली मोटे मोटे तौर पे यही है कि आपके द्वारा हम अपील कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को all over the country to please send in your films so that it comes into the system, don't delay it, and the films get in front of the jury. And it's everything is technically par excellent. The theaters which we have booked to screen the film, the systematic way which FFI always normally does, has been already lined up, and things are all ready to take off. थैंक यू अशोक जी, आपने काफी डिटेल में सब बताया है. नाउ आई थिंक सो वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. प्लीज जस्ट व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन, प्लीज टेल योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच प्रेस यू आर. सो नाउ इट्स ओपन. थैंक यू. We usually have some about 17 to 19 jury members, and the process is on, and they will be finalized, but we do not give the names of the jury or the chairman. That will be declared in the end. So the process is on, and finalization will happen in few days. No. Ashok ji was talking about the mother. No, he was talking that the first film which went in 1957. You're talking about that film? मैंने बोला ना 2 फिल्म आ चुकी है. Yeah, 2 films already have come in, but we don't give the names out. These are all very, very totally secretive. Dharamji was trying to create a suspense. So we don't give the names out. Everything will be out on the 19th. Once the jury and the chairman, let me one more thing tell you. Even we, the committee, the office bearers involved in the FFI are not in part of the jury. So it is totally the jury and the chairman who select the film after screening of the films, and they come out and give us the chip and say, this is the film which we have approved. And that will then be declared to the press and everything. Mumbai. In fact, the committee members are also not allowed to sit in the theater. Yeah. They're all supposed to be out and serve lunch and dinner to them. सिराज भाई, तेरे को माइक की कहाँ जरूरत है यार? नहीं, जरूरत नहीं है. नहीं, जरूरत नहीं है. अरे नहीं जरूरत है यार, सिराज ये माइक के बगैर ही बोलता है. नहीं है, बोलने दीजिए ना, इट्स ओके यार. अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलता हूँ. उर्दू भी बोल सकते हैं. कश्मीरी में बोलूँगा. खानदिश. तो ये है कि जब ऑस्कर के लिए फिल्म चुन ली जाती है कि हमारी इंडिया हमारे
जी राइट, ये तो प्रोसेस आपने बता दिया किस तरह से होगा, लेकिन वो चुने जाने के बाद काफी लंबा प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करने, ताकि वो ऑस्कर के जो कमेटी है अमेरिका में वो लोग देखते हैं, वो शॉर्ट लिस्ट हो, एक लॉबिंग होती है और सुना है कि उसमें बहुत खर्चा होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो खर्चा जो है वो क्या प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर या एफएसआई या गवर्नमेंट कौन लोग शेयर करते हैं उसका? देखिए सिराज भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अ, हम फिल्म की पब्लिसिटी या फिल्म की जो मार्केटिंग जो है वो एफएफआई का काम नहीं है, ठीक है। हम लोग का बहुत सीमित रोल है। हमारा रोल है प्रॉपर जूरी, प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना और उस प्रोड्यूसर को या उस पूरी टीम को उस फिल्म को सिलेक्ट करके भेजना। हमारा काम खाली एंट्री तक ही है, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ फाइनेंशियली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद करता है आगे की चीजें जैसे होती हैं, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक पर्सनल लेवल पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, पेपर वर्क है, उसमें अगर कुछ ये हो तो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं फेडरेशन में वो सजेस्ट कर सकते हैं या वो गाइड कर सकते हैं। बट जो सिस्टम, एक बार फिल्म जाने के बाद आवर रोल एंड्स, देन वी कैन नॉट प्रोसीड एनीथिंग मोर देन दैट। हमारा कोई काम ही नहीं उसके बाद। चाय पिए? हाँ, बैठ जा बैठ जा। कभी ऐसा हुआ है क्या अभी तक के पूरे प्रोसेस में जितने साल से सब चीजें हो रही है, कोई फिल्म रही हो जो शायद आप लोगों को इंडिविजुअली बहुत अच्छी लगी हो, बट जो उसके मेकर्स रहे हो शायद फाइनेंशियली उतने केपेबल नहीं हो उसको एक्टिंग में भेजने के लिए, या जिस भी वजह से फिल्म शायद ना मिली, आप लोगों ने अपनी तरफ से अप्रोच किया कि हमें लगता है आपकी फिल्म बेटर कर सकती है, आपको भेजना है। अब चूंकि उसमें कमर्शियल एंगल भी रहता है तो करीब 1.5 लाख रुपए की फीस होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। कोई शायद इसलिए नहीं भेज रहा कि मेरी फिल्म अच्छी है, मुझे लगता है बट मेरे पास वो पैसा नहीं है। इस पूरी प्रोसेस के लिए कभी कुछ ऐसी कोई क्वेरी आई कि ठीक है आप भेज दो, हम पैसा भी इन्वॉल्व करते हैं? आपको एक बात बताता हूँ, जैसे श्वास श्वास फिल्म थी मराठी, उस पर वो सिलेक्ट हुई थी और उनके प्रोड्यूसर की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, उनको लगा भी नहीं कि उनकी फिल्म सिलेक्ट होगी। और फिर उस टाइम इंडस्ट्री ने सबको रिक्वेस्ट किया और सब लोग ने अपने पर्सनल लेवल पे जितना भी पैसा हो सके उसको डोनेट किया। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाद में उन्होंने भी कुछ 1 लाख रुपए उस टाइम दिया। तो ऐसे हुआ है, लेकिन उसमें एफएफआई का कोई रोल नहीं था, लेकिन इन पर्सनल ग्राउंड, बिकॉज हम लोग सब इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एसोसिएशन जुड़े हैं, तो पर्सनल लेवल पे हम लोग हेल्प किया था उस टाइम। तो ये इंसिडेंट हुआ है। I'll tell you one thing. क्या होता है कि अभी जितने भी लोग एसोसिएशन में है, एफएफआई में है, बड़ी बड़ी प्रोड्यूसर बॉडीज हैं, तो हमारी इंडस्ट्री वैसे भी जो है ना, इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रिवन इंडस्ट्री, ठीक है। तो बहुत ऐसा कम होता है कि अगर सपोज किसी बहुत अच्छी फिल्म बनी है और उसको कहीं प्रॉब्लम लगती है फाइनेंशियली कि वो 1.5 लाख रुपए नहीं दे सकता है, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज देर आर मोर देन 100 प्रोड्यूसर्स एंड टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री जो सामने आकर उसको सपोर्ट करके फिल्म भेज देंगे। तो 1.5 लाख रुपए के लिए कोई फिल्म रुकी नहीं आज तक और रुकेगी भी नहीं। इतना तो मादा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए और आप लोग तो बैठे हुए हैं वो तो हो ही जाता है। आई डोंट थिंक दैट अ प्रोड्यूसर विल एवर नॉट बी एबल टू सेंड अ फिल्म जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव द फीस का मनी। पॉसिबल नहीं है। जब फिल्में जाती हैं ऑस्कर के लिए, एक फिल्म होती है जो आप लोग भेजते हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो प्रोड्यूसर्स खुद भेजते हैं, तो ऑस्कर की तरफ से जो प्रेफरेंस मिलती है जो फिल्म आप लोग भेजते हैं और या जो फिल्म बाकी लोग भेजते हैं? या गुड क्वेश्चन। व्हेन वी सेंड, जब हम लोग फिल्म को रिकमेंड करते हैं तो दैट इज डेफिनेटली गेट्स अ प्रेफरेंस, क्योंकि तभी फिर वो फाइट होती है सिर्फ 1001 फिल्म के बीच में। तो हम भेजते हैं कि इंडिया से हमारी पिक्चर है, लेकिन दैट डजंट स्टॉप directly a producer to send his film, but then the competition is between about 10,000 films. So that is the difference. When we recommend, it's a very, but that's the reason. So इसीलिए
इंडिया का ये ऑफिशियल एंट्री होता है थ्रू आवर्स। फॉरेन कैटेगरी अलग है, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। Any more? ये बताइए ओवर द इयर्स फाइव रहता है तो लोग उसको आ रही मतलब जैसे जो आपके पास फिल्में आती है क्रिटिसिज्म भी होता है कि आपने ये फिल्म क्यों भेजा वो क्यों भेजा तो उसको किस तरह से आप टैकल करते हैं? वो तो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो लोगों को लगता है कि बेटा पैदा क्यों हुआ बेटी क्यों नहीं हुई। तो वो तो देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो लोगों की हो गया, तो होना भी चाहिए। इट्स अ वेरी क्रिएटिव डिसीजन व्हिच एनीबॉडी आई हैव अ थॉट मेरे जैसा तो ये चलनी चाहिए वो चलनी चाहिए। सो अल्टीमेटली देयर आर मोर देन 25-30 minds who sit together, use their best mind and best brain and best time and the best creative element into it. वो डिसाइड करते हैं तो फिर मैच जो जिसको जीतना होता है वो तो जीत ही जाता है। तो उसमें आई थिंक नोबडी ऑफ अस और एफएफआई और द जूरी मेंबर्स, इसलिए जूरी मेंबर्स आजकल एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ है क्योंकि इतनी गालियां पड़ती बेचारों को कि आपने ये कैसे भेज दिया वो कैसे भेज दिया। तो वो सब चीजें तो ठीक है, but I don't think that's an issue at all because difference of mind or difference of thoughts and different of suggestions, so everybody has his own choice, you know. But ये जो decision होता है finally, it's a decision taken by all the jury members, everybody together, and they sign the document and they approve the film. तो अकेडमी ने एक नया रूल इस बार किया है कि एक से ज्यादा दो फिल्में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए भी जा सकती है, जैसे इंडिया से भी दो फिल्में जा सकती है, ये नया पहली बार हुआ है। तो क्या आप सिलेक्ट करेंगे दो फिल्म या एक? नहीं, इसको बोलो। You want to say? So basically, this year onwards, Academy is allowing you to select one more film, but that film selection is not in our hands. The movie selected by Film Federation of India as India's official international feature entry will be only one. But any movie which gets selected as best film in 5 international festivals, whether it's Sundance or whether it's Berlin or all those 5 festivals which are listed, any movie which gets the best film there can automatically become an entry. So it's not Cannes, Berlin, yeah. you understand? Sundance, Cannes, Berlin, Toronto, and Busan. एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगा कि जब आप लोग डिसाइड करते हैं फिल्म की जब डिसाइड करते हैं ऑस्कर से जो लोग हैं अकेडमी से सजेशन उनके किस तरह की फिल्म सेलेक्ट करनी चाहिए? नहीं, it's not that. Initially, we are totally in touch with them, Oscar की committee में every step because it looks very easy. हमने आज बोल दिया कि इस पिक्चर भेजिए, उसके पीछे इतना हार्डवर्क है, इतना मेहनत है, because they are very strict about everything. So we are in touch regarding the technicalities. Yeah. But they don't guide us or they don't say anything. It's up to us to select, and not in our hands also. As I clearly told you, it's the jury and the chairman who finalize. Oscars has nothing to do in. No, I'm talking about jury only. Jury को एक training session या किसी तरह की Yes. जो जूरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, नाम होता है, we have to send it to the Oscars. The Oscars do the due diligence of all of them. They do the due diligence over there about every jury member who we have sent, and then they send the approval. And there's a very big, also one point that the jury members directly or indirectly have not to be connected with any films which have come for submission. You know, he cannot be a jury member. So it's like सपोज that. मैं किसी फिल्म का सिनेमाटोग्राफर हूँ तो मैं जूरी में नहीं हो सकता, कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी मेरा रिलेटिव है किसी फिल्म से, तो आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द जूरी। And everything changes. Yeah, of course. And जैसा तुमने पूछा प्रशांत, जो धर्मजी ने कहा कि ऑस्कर की जो कमिटी जो है वो टेक्निकल डिटेल्स में बहुत प्योरी जाती है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है कि थिएटर कौन सा बुक कर, उसके ये थिएटर में ये फैसिलिटीज हैं क्या, साउंड उतना डिमेंशन का है क्या, उसके प्रोजेक्टर ये सेक्शन का है क्या, इतनी सीट्स हैं क्या। सो एवरी टेक्निकल डिटेल्स व्हाइल स्क्रीनिंग द फिल्म टू द जूरी हैज टू बी एज पर द टेक्निकल डिटेल्स गिवन बाय देम। हम किसी भी छोटे थिएटर में फिल्म नहीं दिखा सकते फॉर सिलेक्शन। So everything is decided by them.
तो उनका जितना भी जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स को मानकर ही आपको आगे चल के दिखाना पड़ता है। सर धुरंधर फिल्म को एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी एंट्री आई क्योंकि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा कि सबसे तेरे को आदित्य धर ने भेजा है कि रणवीर सिंह ने भेजा है? नहीं पता। किसी ने नहीं भेजा है ऑलरेडी सर बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल कर चुकी है फिल्म इतने सारे लोगों ने देखी अरे मैंने बहुत सारी फिल्में आया है, लेकिन अब उसमें जिसकी जिस फिल्में आएगा वो जूरी डिसाइड करेगा ना। एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इट्स जो सपोज जो जो प्रोड्यूसर चाहेंगे वो सबकी पिक्चर का एंट्री आएगा। we on part of Film Federation of India, हमारा जो फर्ज है कि हम बॉम्बे में जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जितने हम लोग माउथ टू माउथ बोल सकते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसर बॉडीज ऑल्सो, तो हम सबको हमने बता दिया है कि प्लीज भेजिए। उनकी विश है कि वो कंपटीशन में उतरना चाहते हैं कि नहीं। So today's press conference is basically also to, with your help, also to appeal to all the producers to please submit your films to FFI at the earliest, so that all the paperwork can be done and the things can be planned out. कल को हो सकता है कि इतनी फिल्में आ जाए कि हम जो हमने दिन सिलेक्ट किए हैं उसमें हम देख नहीं पाए। सपोज 100 फिल्में आती हैं तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, यू नो। सो नॉर्मली 25 से 50 आ जाती हैं, 30-40 आती हैं फिल्में, but you never know. So it's very important for you, all of you, to see to it that our message reaches to all the producers. In fact, हमने सारे producers को लिखा हुआ है, सारे producer bodies को लिखा हुआ है, हमारी तरफ से जितना भी जो communication है वो हो गया है। But that's why the main reason of calling this press conference was to get to the entire industry all over the country to send their films as soon as possible, which fits into the year and date specifications. ऑस्कर कमेटी की तरफ से एकेडमी की तरफ से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं क्या कि ये फिल्म इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए, ये सब टोटली एवरीथिंग उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, साउंड की, पिक्चर क्वालिटी की, all that is there कि पिक्चर एक बहुत बड़ा एक और पॉइंट है कि फिल्म has to be a totally Indian film. Producer has to be from India. So there are a lot of points which मैंने अपने वेब पे भी अपलोड किया हुआ है सब स्पेसिफिकेशन। मुझे लगता है आज भी हम प्रेस रिलीज में हमने वो ऐड किया हुआ है, तो आप सबको मिल जाएगा, तो यू कैन शेयर इट विद द पीपल। In fact, स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। in fact, अभी जो सही कहा कि मुंबई में बहुत सालों के बाद हो रहा है, as far as screening is concerned है, सिलेक्शन जो पूरी प्रोसेस जो है वो मुंबई में बहुत सालों के बाद हो रहा है। एंड इन फैक्ट वी आर ऑल वेरी, ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभय जी जो इपा के प्रेसिडेंट हैं, विच इज डायनामिक लीडरशिप, द एंटायर थिंग इज बीइंग हैंडल्ड वेरी इन अ वेरी नाइस वे। संग्राम जी, धर्म जी, निशांत, the entire team is working day in and day out to see to it that this entire process gets properly done with a lot of grace and with a lot of dignity. So all that has been worked out. So क्योंकि मुंबई में हो रहा है तो हमारी पूरी इंडस्ट्री जो यहाँ पे है वो एक्टिव हो जाए, अपनी फिल्में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजे ताकि चीज़ें जो है हमको ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो। उस पे खड़ी उतरने वाली फिल्में ही आप देख पाएंगे। बिल्कुल। तो अगर कोई फिल्म आप सिलेक्ट करते हैं वो उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की नहीं, तो फिर वो प्रोड्यूसर को आपको ऐसी कॉपी बना के देनी पड़ेगी जो टेक्निकल नेचुरली वो हम एडवांस में प्रोडक्शन हाउसेज को सब बता देते हैं कि इसी फॉर्मेट में आपको देना है, यही स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कोई एडिटिंग करेंगे नहीं तो फिर वो आगे बात नहीं जाएगी। थैंक यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I want to end by saying that कि एक तो भी ये आप खाली हम लोग की नहीं, ये मुंबई की इज्जत का सवाल है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इसको प्रेस को जितना आप प्रोडक्शन को भेज सकें कि हमको पिक्चर जास्ती से जास्ती है। और मैं अभी अपने वाइस प्रेसिडेंट निशांत जी को दे रहा हूँ माइक और वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच, सबको आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 19 सितंबर को हम लोग इंडिया का जो ऑफिशियल एंट्री होगा ऑस्कर की उसका अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।